Hello students, good evening. This is Amrita ma'am once again. Very happy Chhat Puja to all of you. बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आई है आप लोग की फॉर शेयरिंग द आंसर्स. जैसे आईटी के आंसर्स, नरसिम्हा जी के असाइनमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. सिंस आई एम आउट ऑफ स्टेशन आई कैन नॉट गिव यू अ वेरी प्रोफेशनल आंसर्स. मैं आंसर शेयर नहीं कर पा रही बिकॉज मैं भी कंप्यूटर और टैब से जस्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो ट्राई टू नोट इट डाउन वॉट एवर आंसर्स आई एम शेयरिंग. ट्राई टू नोट इट डाउन. Okay, though I'm just sharing the assignment, Narsimhanji assignment first semester, information technology and information systems for managers. This is the paper, IT systems. इसमें first question जो है, फारूक मोटरवाला is the CTO at DaCosta Cosmetics in Hyderabad. Farooq wants to revamp the firm's IT infrastructure and align it to the corporate strategy. In order to do this, what are the technical and business consideration for Farooq? What are the laws of IT infra which Farooq must keep in mind? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है. तो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स रिलेटेड टू आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये दो शब्द को मिलके ये हुआ है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, it includes everything whatever is there in an organization which is going to assist you or help you in order to accomplish your objectives. Now we all know that we cannot conduct our business without proper usage of technology, and technology means you need hardware, software, computers, technology, everything whatever is needed. आप अगर मैं अगर IT environment की बात करूँ, it starts from your computer, mobile, attendance software, and you have so many softwares are there. You need laptop, you need technological environment, updated softwares, AI is there, artificial intelligence is there, as well as we need a server system, the entire backup system, the network topologies, all these things are related. So whenever we talk about IT infrastructure, it's a very comprehensive system. So we cannot say that this is IT infrastructure, this is like this. It is composed of everything. So an IT infrastructure composed of a vast group of things. It starts from your hardware till software. Now since Farooq has joined as an CEO. Now, yes, he joined. Farooq Motorwala is the CTO at DaCosta. So he joined and he has been given the task for revamp the IT infrastructure. What does it mean? इसका मतलब यही है कि he has been assigned the task of redesigning the IT infrastructure. आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक IT infrastructure already in place है. You wanted to redesign the entire IT infrastructure. मीन्स नाउ अब एक चीज़ बहुत क्लियर है. वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इट कुड बी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और आईटी स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, इट शुड ऑलवेज बी इन अलाइनमेंट विद द स्ट्रैटेजी. First comes the strategy and then we prepare the structure. So there must be a proper alignment between the strategy of the business and then you will prepare the structure. तो strategy फिर structure. तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर जो फारूक मोटर वाला है उसको क्या करना है, he needs to revamp the firm's IT infrastructure. तो what are the business and technical consideration? दो important चीज़ें, इसके आंसर आपके बुक में बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन है. Now I'll just tell you business consideration. सीधी सी बात है, हमारा बिजनेस क्या है, what are the objectives of the business, what are the goals, what are the higher vision or mission of the business, and accordingly we prepare our business strategy. अब बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या है, उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस के आईटी स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे. तो नॉर्मल सी बात है, हमारा बिजनेस वेदर इट्स टेक्नोलॉजिकल बेस्ड और नॉट, वेदर अब सीधी सी बात है, इफ यू वांट टू ऑपरेट एन हॉस्पिटल और यू वांट टू ऑपरेट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो दोनों की जो आईटी रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइनिंग ऑफ द आईटी, आप अगर आईटी डिपार्टमेंट की बात करो और इवन इफ यू टेक एन आईटी ईस्ट डिपार्टमेंट, अगर टीसीएस की बात कर लो, विप्रो, इन सारे एक्सेंचर, इन सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात कर लो, दे हैव एंटायर अ डिफरेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम दैट ऑफ एनी हॉस्पिटल और इफ यू टेक एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विल डेफिनेटली बी वेरी डिफरेंट. दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बिकॉज दे ऑल हैव देयर डिफरेंट बिजनेस
माइंडसेट्स, उनका बिजनेस का गोल्स अलग है। तो बिजनेस को कंसिडर करते हुए, सीधी सी बात है ना, हमारा बिजनेस क्या चीज का, वेदर वी आर ऑपरेटिंग इन अ टेलीकॉम सेक्टर और वेदर वी आर ऑपरेटिंग एज सीसीडी, जोमेटो चला रहे हो, क्या चला रहे हो, अकॉर्डिंगली यू नीड एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो बिजनेस जैसा है, बिजनेस के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स उसको ध्यान में रखते हुए आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप तैयार करोगे ना। डेफिनेटली सम टेक्निकल कंसिडरेशन मस्ट ऑल्सो बी देयर। व्हाट आर दोज कंसिडरेशन? टेक्निकल कंसिडरेशन का सीधा सा मतलब है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। नाउ टेक्निकल एस्पेक्ट मस्ट बी अलाइंड विद द बिजनेस एज वेल। मेरे बिजनेस को कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो चीज अलाइनमेंट होगी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द एंटायर थिंग। आंसर आपके बुक में क्लियर पॉइंट में लिखा हुआ है, बिजनेस एंड टेक्निकल कंसिडरेशन, यू विल गेट इट इजिली। फाइन। सो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हमें क्या देखना है जब अपने फॉर्म के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे? विल लुक इनटू द टेक्नोलॉजी दैट इज इन अलाइनमेंट विद आवर बिजनेस नीड्स, बिजनेस गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो हेल्प करेगी। सो दोज थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड, राइट। आईटी इंफ्रा, वैसे ही हम टेक्निकल कंसिडरेशन देखेंगे। देन टेक्नोलॉजिकल का स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द टेक्नोलॉजी इन विच वी आर गोइंग टू ऑपरेट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, इसका फर्दर एक्सपेंशन होना है या ऑब्सोलेट होने के चांसेस है, व्हाट इज द एंटायर थिंग। मैं सिर्फ प्रेजेंट देखकर एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकती, आई नीड टू ऑल्सो लुक इन टू द फ्यूचर ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, राइट। सो ये दो हो गए आपके बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल कंसिडरेशन। Now, next part of the question is related to the IT laws. Now, IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉज के बारे में बोला गया है। आप लोगों के बुक में IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉज को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं है, राइट। देन अगर हम अपने पूरे एंटायर IT फ्रेमवर्क को देख ले, जो अपने लीगल जो फ्रेमवर्क है उसमें भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के कोई exhaustive या comprehensive law is not in place. Now, but yes, there are different laws that will enhance your business or that will assist you in your day-to-day business operations. जैसे इसमें आगे आपका सबसे पहले IT इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, जिसकी डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं। 2008 में भी अमेंडमेंट्स हुआ है, ठीक है। तो वो हो गए आपके। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, देन यू हैव साइबर एक्ट है, डिजिटल सिग्नेचर एक्ट है। ये सारे हमारे बिजनेस को असिस्ट करता है कहीं ना कहीं पर। तो ये सारी चीज़ें हमको जब अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बिकॉज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तैयार करें, सो दैट हमारे अपने बिजनेस कंडक्ट हम आसानी से कर सकें। अब बिजनेस को कंडक्ट करने में यू नीड टू हैव डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, आपको ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करना हो सकता है, देयर आर चांसेस, देयर आर थ्रेट्स ऑफ योर साइबर अटैक्स फॉर योर फाइल्स, आपकी डेटा इधर उधर हो सकता है। सो डेटा प्रोटेक्शन के जो एक्ट हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो एक्ट्स हैं, उनके डिफरेंट सेगमेंट्स को, सेक्शंस को आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है लॉजिकली, कि आप बिजनेस में क्या क्या सोचते हो, कौन कौन से पॉइंट आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उस हिसाब से। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर मैनेजर का फर्स्ट आंसर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।